Department of Biotechnology. The Department of Biotechnology was established in the year 2005. The department designs the concepts and thoughts that nurture the minds of budding biotechnologists and amplifies them as innovations and processes of technological significance. It caters to the fast-growing fields in the frontier areas of biotechnology and healthcare through cutting-edge research and advanced trainings. The main thrust areas of research being food, water, health, and energy. Programs offered: B.Tech Biotechnology, M.Tech Biotechnology, MSc Microbiology, M.Phil or PhD Biotechnology, Infrastructure and Research Facility. Healthy interaction between institutions and industries is consistently promoted in this program to augment research and commercialization of products that is achieved by the state-of-the-art lab and research facilities, bioprocess technology and downstream processing, biochemical engineering, cell biology and immunology, microbiology, molecular biology and genetic engineering, plant and animal tissue culture, CPC SEA approved animal house, algae biomass research, BESI, USA. Funded research projects worth 2.5 crore rupees has been received from various funding agencies such as DBT, DST, NTRF, BESI and UBCHEA. Placements. Our major recruiters are from pharmaceutical, bioprocessing, food and allied industries, and our alumni are placed in Biocon, Z4 R&D Solutions, Nestle, NDC UAE, Premier Biosoft, CMC Vellore, ICAR, NRCPB, Infosys, Accenture, CTS, TCS. As analysts and managers in R&D and quality control laboratories, the department holds a placement percentage of 85% to its record. For more details, visit www.karunya.edu. Toll-free number 1-800-425-4300. Your sorrow will turn into joy. After 8 years, she is walking. Look at her smiling. She is full of joy. My precious friend, मेरे बहुमूल्य दोस्तों, the Lord weighs the hearts of the people. परमेश्वर जो है वो तो लोगों के हृदय को तौलता है। He weighs the spirits. वो आत्मा को तौलता है। Sometimes our spirits are sorrowful. कई बार हमारी जो आत्मा है वो बहुत ही दुखी होती है। Sometimes our spirits are connected to sinful pleasures. और कई बार हमारी आत्मा पाप में बातों के साथ में जुड़ी होती है। Sometimes our spirits are filled with unbelief. और कई बार हमारी आत्मा अविश्वास से भरी होती है। Sometimes our spirits are full of defeat, saying, I can't do anything, I am finished. और कई बार हमारी आत्मा तो हार से भरी होती है। हम कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो खत्म हो गया। The Lord weighs those spirits. परमेश्वर उन आत्माओं का मूल्यांकन करते हैं। And that's why he says, I'll fill you with my Holy Spirit. और इसलिए प्रभु कहते हैं कि मैं अपनी पवित्र आत्मा से तुम्हें भर दूंगा। When my Holy Spirit comes into you,
there will be liberty. और जब मेरी आत्मा तुम में आएगी तब आजादी होगी, स्वतंत्रता होगी। Where the Spirit of the Lord is, there is liberty. जहाँ परमेश्वर का आत्मा है वहाँ पर स्वतंत्रता है। So today, cry out for Jesus to fill you with His own Spirit, the Holy Spirit. और इसलिए आज आप प्रभु यीशु को पुकार उठें कि वो आपको भर दे, अपनी ही आत्मा से, पवित्र आत्मा से भर दे। So when the Holy Spirit comes into you, ताकि जब पवित्र आत्मा आप में आता है, your spirit gets liberated from sorrow, sin, defeat, pain, and so on. तो आपकी आत्मा जो है दुख, परेशानी, दर्द और हार, इन सारी बातों से आजाद हो जाती है। And it gets connected to the Spirit of God. और ये परमेश्वर की आत्मा के साथ में जुड़ जाती है। God's Spirit is life, परमेश्वर की आत्मा तो जीवन है, resurrection, पुनरुत्थान है, and power, और सामर्थ्य है, and love. और प्रेम है। Yes, हाँ, honor and praise everywhere when we carry the Spirit of God. जब हम परमेश्वर की आत्मा को लिए चलते हैं तो हर जगह परमेश्वर की आत्मा स्तुति है, तारीफ है। That's the Spirit God wants to give you today. और परमेश्वर आज आपको यही तो आत्मा देना चाहते हैं। And God has a time for those blessings. और इन सारी आशीषों के लिए परमेश्वर के पास में समय है। He will fill you right now with the Spirit as you pray unto Him. और जैसे आप अभी प्रार्थना करते हैं तो निश्चित परमेश्वर अपनी आत्मा से आपको भर देंगे। सो इवन बीइंग अ डॉक्टर, लेकिन मेरे को दवाई से ज़्यादा दुआ में ज़्यादा बिलीफ है। कई बार हमारे जीवन में हुई दुर्घटना के कारण से हम परमेश्वर से अपने आप को दूर कर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता और समय रहते हम यीशु की कृपा का अनुभव हमारे जीवन में करते हैं और हमारा विश्वास प्रभु में अद्भुत रीति से बढ़ता है।
मेरा नाम है शैलजा कंडोलना और मैं एक मेडिकल ऑफिसर हूँ। मैं अभी स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस में एज अ ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ काम कर रही हूँ। मैं जब प्राइवेट जॉब कर रही थी तो नेचुरली प्राइवेट जॉब में काम ज़्यादा होता है और पैसा कम होता है, और मैं तो प्राइवेट प्रैक्टिस भी नहीं करती हूँ। शुरू से ही मेरा था कि मैं प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करूँगी, ओनली जॉब। सो मेरा उस वक्त थोड़ा मुश्किल है हालत। मैंने ये फ्लैट मैंने ख़रीदा था, ये लोग डैडी के फ्लैट में रह रहे थे दमदम में, तो आई हैड टू, मेरे को लोन देना था, तो मेरा बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे को गॉड इफ़ आई गेट अ गवर्नमेंट जॉब, मैं लोन माने 2-3 साल में मैं लोन कंप्लीट कर दूंगी। तो सडनली मैंने जॉब लूज़ किया एंड देन आई हैड टू जम्प इन दिस फ्लैट। तो इस सब मुश्किल हालत में सडनली मेरे डैडी का धीरे धीरे बहुत कंडीशन ख़राब होने लगा एंड ही एक्सपायर्ड। व्हेन ही एक्सपायर्ड आई वेंट इनटू अ सीवियर डिप्रेशन। मेरे को लगा कि क्या हुआ, मैं इतना क्लोज आ गई गॉड के पास में, लेकिन फिर डैडी को क्यों लेके चले गए। अब मैं कैसे करूँ इसको, मैं मम्मी को कैसे संभालूँ, क्या करूँ, एवरीथिंग पजल्स हो गए। मैं बाइबल पढ़ना बंद, मैं प्रेयर करना बंद कर दी थी, ये कुछ नहीं होता है। एक दिन सडनली माई आंटी, शी इज़ ऑल्सो अ प्रेयर वॉरियर इन रांची प्रेयर टावर, वो आई हुई थी। तो बोली तुम क्यों प्रेयर टावर नहीं जाते हो, इतना अच्छा प्रेयर टावर खुला है। तो मैं एक दिन निकल पड़ी। एक्चुअली मैं स्प्लेनेड जा रही थी, मेरे को क्या हुआ कि मैं प्रेयर टावर चली गई। मैं जब प्रेयर टावर गई तो देखी प्रेयर टावर में ब्रदर पॉल दिनाकरन एंड सिस्टर इवेंजेलिन दिनाकरन आए हुए हैं। तो मैं अंदर गई एंड मैंने ब्रदर को बोला कि ब्रदर आई नीड अ गवर्नमेंट जॉब, मेरे को ये प्राइवेट सेटअप में काम नहीं करना है। तो ही प्रेड, वो उसने इमीडिएटली हाथ रख के, इनफैक्ट नॉट ओनली ब्रदर ने प्रेयर किया, सिस्टर ने भी हाथ रख के मेरे ऊपर में प्रार्थना किया एंड मेरे को बहुत हल्का लगा उस दिन, बहुत अच्छा लगा, अंदर से बहुत अच्छा लगा। एंड आई डोंट नो, मिरेकुलसली मेरे को 2 लेटर आ गए जॉब के, एक पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और एक हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ हेल्थ सर्विस, दोनों ही गवर्नमेंट के जॉब मेरे आ गए। मैं सेलेक्ट नहीं कर पा रही थी मैं किसको ज्वाइन करूँ। देन द जॉब विच वॉज नियर टू माई हाउस, मैं ये गवर्नमेंट हेल्थ सर्विस मैंने ज्वाइन कर लिया। आफ्टर गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब आई कुड गिव माई लोन। मैंने लोन विदिन 3-4 ईयर्स में मैंने लोन पूरा कर दिया। इनफैक्ट बैंक वॉज टेलिंग मी, कितने आदमी कितने बड़े बड़े लोन लेते, तुम लोन क्यों नहीं ले रहे, यू टेक अनदर लोन, अनदर ये। तो मैंने बोला अभी नहीं, अभी मेरे को आई हैव कम क्लोजर टू गॉड, आई डोंट वांट टू गो बैक। मैं तो मतलब नेम से एक क्रिश्चियन थी, ना ही बाइबल में पढ़ती थी, ना ही मैं डीपली अंदर इतना जाती थी, जस्ट अ नेम से क्रिश्चियन। लेकिन प्रभु के आशीषों के बाद में जब से मैं प्रेयर में आई और जब से मैं प्रेयर टावर से जुड़ी, और डेफिनेटली मैं बोलना चाहूँगी कि प्रेयर टावर अ टर्निंग पॉइंट। ब्रदर दिनाकरन, पॉल दिनाकरन एंड हिज फैमिली इज़ अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी। इन मतलब न्यू तरीके से मैं रीबॉर्न हो गई इन क्राइस्ट। एंड इतने मैं जितना भी कांटेक्ट करती थी प्रेयर टावर एंड ब्रदर दिनाकरन से, मेरे आशीष दुगुनी होते जाते थे। नेवर एक भी प्रार्थना मेरा फेल नहीं हुआ है। आई एम वेरी थैंकफुल टू द जीसस कॉल्स मिनिस्ट्री। ऑफ कोर्स थैंकफुल टू गॉड, ऑफ कोर्स ही इज़ द फर्स्ट, थैंकफुल टू गॉड। जिस परमेश्वर ने इस व्यक्ति के लिए चमत्कार किया है, वही परमेश्वर आपके लिए भी चमत्कार करेंगे। जीसस कॉल्स की सेवकाई हमेशा आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। हम लाखों लोगों के आंसुओं को पोंछते हैं। आप जीसस कॉल्स के अलग अलग फैसेट से जुड़ जाइए और इस सेवकाई में मदद कीजिए। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाइए www.jesuscalls.org पर। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। In John chapter 14 and verse 1, यूहन्ना 14 अध्याय और उसके 1 पद में Jesus says, "Do not be troubled." यीशु कहता है तुम व्याकुल ना हो।
I, Jesus, I will come to you. मैं यीशु तुम्हारे पास आऊंगा, And when I come to you, your sorrow will turn into joy. और जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा, He will wipe away your tears. और वह आपके सब आंसुओं को पोंछेगा। When Jesus comes to you, और जब यीशु आपके पास आएगा what does he do for you? तो वह आपके लिए क्या करेगा? First of all, he makes you his house. सबसे पहले वह आएगा और आपको अपना निवास बनाएगा। Jesus makes your body his house. यीशु आपके शरीर को अपना निवास बनाता है। Yes, in Revelation 3 and verse 20, हाँ, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 20 पद में Jesus says, यीशु कहता है, I will come into your heart. मैं तुम्हारे हृदय में आऊंगा, I will live with you. मैं तेरे साथ रहूंगा। 2 Corinthians 6:16 दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय का 16 पद and 18. और 18 He पद says, I'll be a father to you. वह कहता है, मैं तेरा पिता होऊंगा, You will be my son. तू मेरा बेटा होगा, You'll be my daughter. तू मेरी बेटी होगी। Yes, today he's going to make your body his temple, his house. हाँ, आज वह आपके शरीर को अपना मंदिर, अपना निवास बनाने जा रहा है। Yes, he's not just living in the heavens. हाँ, वह केवल स्वर्ग में नहीं रहता, He wants to live in your heart, वह आपके हृदय में रहना चाहता है, live with you. आपके साथ रहना चाहता है। He says, you're not going to be an orphan वह anymore. कहता है, अब से तू अनाथ नहीं होगा, I, the Almighty God, Jesus, will come and live in you. मैं सर्वशक्तिमान यीशु आकर तुम्हारे साथ रहूंगा, And you will see him. और आप उसे देखेंगे, You will see him. आप उसे देखेंगे। In John 16:19, he says, you will see me. यूहन्ना 16 अध्याय और उसके 19 पद में वह कहता है, तुम मुझे From देखोगे। today, you will experience Jesus in you. आज से आप यीशु को अपने अंदर महसूस करेंगे। There was a man who was drinking and drinking and drinking. एक व्यक्ति था जो लगातार शराब पीता रहता था, And he was be fighting in his working place. और अपने कार्य के स्थान में सब लोगों से लड़ता था। Every day during the mid-afternoon break, he will go and drink. हर दिन दोपहर के समय जो अवकाश का समय होता था, उसमें वह जाकर शराब पीता था। And one day in the street when he was going to drink in the afternoon, somebody was talking about the love of Jesus. और एक दिन दोपहर के समय जब वह शराब पीने के लिए सड़क पर जा रहा था, तो उसने किसी को यीशु के प्रेम के बारे में बात करते हुए सुना। The man was saying, why do you want to carry your life by yourself? और वह व्यक्ति कह रहा था, तुम अपने जीवन का बोझ खुद उठाकर क्यों चलना Come चाहते to हो? Jesus. यीशु के पास आ जाओ, He will carry you. और वह आपको लेकर चलेगा। And this man gave his life to Jesus. और इस व्यक्ति ने अपना जीवन यीशु को दे दिया, And he said, alcohol is running my life, और Lord. उसने कहा, प्रभु शराब मेरे जीवन को चला रही Now I है, want you, Jesus, to run my life. परंतु मैं चाहता हूं कि तू यीशु मेरे जीवन को चलाए। He said a simple prayer. उसने एक छोटी सी प्रार्थना की, And Jesus came. और यीशु उसके जीवन में आया, Transformed his life. उसके जीवन को बदल दिया। Drinking stopped. उसकी शराब पीने की आदत जाती रही, Peace came into his heart. और उसके हृदय में शांति आ गई। And every afternoon during the break, और हर दोपहर को अवकाश के समय में he would go to a small chapel nearby. वह वहां पास ही में एक छोटे से चर्च में जाता, Take off his hat. वहां पर अपने टोप को उतारता, Stand before the altar. और वहां वेदी के सामने खड़ा हो जाता, And he would cry for 20 minutes. और 20 मिनट तक पुकार कर कहता, Saying, thank you, Jesus, for becoming my father. हे यीशु तेरा धन्यवाद हो मेरा पिता बनने के लिए, Thank you for coming into my heart. मेरे हृदय में आने के लिए तेरा धन्यवाद हो, I have God in me. मेरे अंदर परमेश्वर रहता है, Thank you for washing my sins away. मेरे पापों को धोने के लिए तेरा धन्यवाद, Thank you for delivering me from alcohol. मुझे शराब की लत से छुड़ाने के लिए तेरा धन्यवाद। After 20 minutes, और 20 मिनट के बाद he will get up, वह उठता, look to the altar, वेदी की ओर देखता, and say, Jesus, और कहता, यीशु this is Jim. मैं जिम हूँ, This is Jim. मैं जिम हूँ। And then he would put his hat and go to work. और फिर अपना टोप पहनता और काम पर लौट And जाता। one day he got into an accident. परंतु एक दिन उसके साथ एक दुर्घटना हो गई, He was put in a hospital. और उसे एक अस्पताल पहुंचाया गया। It was a workers' hospital. और यह जो अस्पताल था, यह कर्मचारियों का अस्पताल था। So everybody will be fighting with the nurses and the doctors. वहां पर सब लोग डॉक्टरों के साथ और नर्सों के साथ लड़ते थे। But when Jim was admitted, the hospital had total peace. परंतु जब जिम को वहां पर दाखिल कराया गया, तो उस समय से वहां पर पूरी तरह से शांति हो गई। The doctors asked Jim, how come there is so much of peace from the time you got admitted? डॉक्टरों ने उससे पूछा कि जिम, जब से तू यहाँ पर भर्ती हुआ है, तब से यहाँ पर इतनी शांति कैसे आ गई है?
Jim said when 12 o'clock came in the afternoon, जिम ने कहा जिस दिन मैं यहाँ आया उस दिन जब दोपहर के 12 my बजे heart was broken because I couldn't go to see Jesus in the chapel. मेरा दिल टूट गया क्योंकि मैं यीशु से मिलने चर्च नहीं जा पाया। But then somebody appeared by my side. लेकिन उसी समय कोई मेरे बिस्तर के पास प्रकट हुआ। By my bed in the hospital, somebody appeared. अस्पताल में मेरे बिस्तर के पास कोई प्रकट हुआ And he was shedding tears. और वह आंसू बहा रहा था। At the end of the 20 minutes, और 20 मिनट के बाद and he said, Jim, और उसने कहा जिम Jim, this is Jesus. मैं यीशु हूँ, This is Jesus. मैं यीशु हूँ, This is Jesus. मैं यीशु हूँ। जिम You could not come to see me. तू मुझसे मिलने नहीं आ पाया I have come. तो मैं मिलने आ गया हूँ। I am with you always, Jim. मैं हमेशा तेरे साथ हूँ जिम। Amen. आमीन। Jim said, Doctor, this is why there is so much of peace in the hospital. और फिर जिम ने डॉक्टरों से कहा इसीलिए अस्पताल में इतनी शांति है। Today, Jesus wants to come with you. आज यीशु आपके साथ आना चाहता है। And secondly, और दूसरी बात, you will begin to hear the voice of Jesus in your heart. आप अपने हृदय में यीशु की आवाज को सुनने लगेंगे। The Bible says बाइबल कहती है in Psalm 107 and verse 20, भजन संहिता 107 और उसके 20 पद में, Jesus sent his word and healed the people. यीशु ने अपने वचन को भेजकर लोगों को चंगा किया। Wherever Jesus speaks, miracles happen. जहां पर भी यीशु बोलता है वहां चमत्कार होते हैं। Miracles happen. चमत्कार होते हैं। Jesus cannot tolerate his children from suffering. यीशु सहन नहीं कर सकता कि उसके बच्चे दुख में रहें। He sends his word वह अपने वचन को भेजता है and heals his people. और अपने लोगों को चंगा करता है। That's why we read the Bible every day. इसीलिए हर दिन हम बाइबल को पढ़ते हैं For us to have healing in our soul, ताकि हमारी आत्मा में हमें चंगाई मिले, healing in our body, हमारे शरीर में चंगाई मिले, healing in the family, हमारे परिवार में चंगाई मिले, healing in the finances, हमारे पैसे में चंगाई मिले, healing in our social life, हमारे सामाजिक जीवन में चंगाई मिले, healing in the job. नौकरी में चंगाई मिले। Every day Jesus speaks through his word. हर दिन यीशु अपने वचन के द्वारा बात करता है। And our hearts are filled with the plan of God. और हमारे जो हृदय हैं उनमें परमेश्वर की योजना पूरी तरह से भर जाती है। And according to Psalm 1:3, everything we do prospers. और भजन संहिता 1 उसके 3 पद के अनुसार हम जो भी करते हैं वह सफल होता है। Do not be afraid. इसलिए आप डरे नहीं, Do not be afraid. डरे नहीं। The glory of God is coming upon you right now. परमेश्वर की महिमा इसी समय आप पर उतर रही है। Many years ago, बहुत साल पहले a bishop became very sick. एक बिशप बहुत बीमार हो गए। He was in the hospital. वह अस्पताल में थे And the doctor said he has cancer. और डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें कैंसर हो गया है। But my father went to pray for him. परंतु मेरे पिताजी उनके लिए प्रार्थना करने के लिए And the गए Holy Spirit spoke to my father और पवित्र आत्मा ने मेरे पिताजी से बात की and said, Son, he does not have cancer. What he has is ulcer. और कहा बेटे उन्हें कैंसर नहीं है, उन्हें केवल अल्सर है। And my father said that to the bishop. और मेरे पिताजी ने जाकर बिशप को यह बात बताई And the bishop received the word of God. और बिशप ने परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया। He said, let's go home. उन्होंने कहा चलो घर चलते हैं। Doctor said, you cannot go. डॉक्टरों ने कहा आप नहीं जा सकते। He said, God has spoken through his servant. उन्होंने कहा परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा बोला है, I'm going home. मैं घर जा रहा हूँ। And he was praying in the home, और वह अपने घर में जाकर प्रार्थना कर रहे थे। saying, I'm sick. उन्होंने कहा मैं बीमार हूँ, Should I go and take up the job of the bishop? लेकिन क्या मैं जाकर अपने बिशप के कार्यभार को संभालूं? And in the chapel, और उनके चर्च में when he was reading the Bible the next morning, अगली सुबह जब वह बैठकर अपनी बाइबल को पढ़ रहे थे God's voice came through his तो word. परमेश्वर के वचन के द्वारा उसकी आवाज आई It said, go and take up your job in the vineyard. और उसने कहा जाकर दाख की बारी में अपने कार्यभार को संभाल। That word of God came through the scripture. परमेश्वर का यह वचन पवित्र शास्त्र के द्वारा He आया went and took up his office as the bishop. और वह गए और बिशप के रूप में अपने पद को संभाला। And 3 months later, he went to Germany. और 3 महीने बाद वह जर्मनी गए। The doctors there tested वहां पर डॉक्टरों ने उनकी जांच की and said, Bishop, और उनसे कहा बिशप you have an ulcer in your stomach. आपके पेट में अल्सर है। Yes, it was true what God had spoken. हाँ, जो परमेश्वर ने कहा था वह बात सच थी। And he lived long and served the और Lord. इसके बाद वह लंबे समय तक जीवित रहे और प्रभु की सेवा की। God's word will come to you every morning. परमेश्वर का वचन हर सुबह आपके पास आएगा। You are not an orphan in this world. इस संसार में आप अनाथ नहीं हैं। Jesus will speak to you. यीशु आपसे बात करेगा। My friend, shall we pray? मेरे दोस्तों आइए हम प्रार्थना करते हैं। Lord Jesus,
प्रभु यीशु, you destroyed the works of the devil on the cross. प्रभु आपने शैतान के कामों को क्रूस के ऊपर नाश कर दिया है। Today, where the Holy Spirit is, there is liberty. आज जहाँ पर पवित्र आत्मा है वहाँ पर स्वतंत्रता है। The Lord Holy Spirit pushes the demonic spirit on the ground. और पवित्र आत्मा जो प्रभु है वो तो दुष्ट आत्माओं को सीधा नीचे जमीन पर गिरा देते हैं। He comes like a hailstorm and a mighty wind. और वो तो एक बर्फ के ओले के तूफान के जैसे या बड़ी आंधी के जैसे आते हैं। Throws the evil one to the ground. और पवित्र आत्मा उस दुष्ट को बिल्कुल नीचे जमीन पर पटक देता है। Lord, thy children need your Holy Spirit. परमेश्वर आपकी संतानों को पवित्र आत्मा की जरूरत है। As you filled me, जैसे आपने मुझे भर दिया, fill them now. इन्हें अभी भर दीजिए प्रभु। Release them from every failure today. आज इन्हें हर एक असफलता से आजाद कीजिए प्रभु। Ratnam, रत्नम, God touched you right now. परमेश्वर ने अभी आपको छू लिया है। Every cancerous spirit is leaving you. कैंसर की हर एक आत्मा आपको छोड़कर जा रही है। There is another person called Ratna. एक और व्यक्ति जिनका नाम है रत्ना, God touches you right now. प्रभु अभी आपको छू रहे हैं। You are laboring in the homes of the people. आप लोगों के घर में जाकर काम करते हैं। Ratna, रत्ना, God is giving you an open door to be blessed. परमेश्वर आपको आशीष दे रहे, खुला द्वार दे रहे कि आप आशीष पाएं। Your family members will prosper. आपके परिवार के सदस्य संपन्न होंगे। Aradhana, आराधना, people have accused you and broken your heart. लोगों ने आप पर दोष लगाया है और आपके दिल को तोड़ दिया है। You're suffering with great pain. आप बहुत दर्द को सह रही हैं। Nobody understands your righteous heart. कोई भी आपके धर्मी दिल को नहीं समझ पाता है। They are blaming you for your words. आपके शब्दों के लिए वो आप पर दोष लगा रहे But हैं। God is giving you new tongues. लेकिन परमेश्वर आपको नई जीभ दे रहा है। You will speak wisdom. आप बुद्धि की बातें कहेंगे। You will be very honored in the days to come. आने वाले दिनों में आप बहुत आदर पाएंगे। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Kanike Mary, कानी के मेरी, God touches you right now. प्रभु अभी आपको छू रहे हैं। You're worried about your children, आप अपने बच्चों के बारे में चिंता कर your रही हैं। son who is wayward, आपका बेटा जो डगमगाता है, and another person in the family who is abroad. और प्रभु आपके परिवार का एक और व्यक्ति जो कि अभी विदेश में है। But God is bringing everybody together, लेकिन परमेश्वर सभी को एक साथ ला रहे हैं and all of them shall prosper. और सब के सब संपन्न होंगे। Elijah, एलाइजा, God touched you right now. परमेश्वर ने अभी आपको छू लिया है। You have all the gifts of grace. आपके पास में अनुग्रह के सारे वरदान हैं। God is in you. परमेश्वर आप में है। Never allow the discouraging spirit to come. आप कभी निराशा की आत्मा को आने न दें। Rise up, उठ खड़े हो जाएं fulfill the will of God. और परमेश्वर की इच्छा को पूरा कीजिए। No weapon formed against you shall आपके prosper. विरुद्ध में बनाए कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। Getsia, गित्सिया, God touched you right now. प्रभु अभी आपको स्पर्श कर रहे हैं। God will honor you before all people, प्रभु आपको सभी लोगों के सामने आदर देंगे and He is healing your body. और वो आपके शरीर को चंगाई दे रहे You हैं। will rise up and go to care for the children. आप उठ खड़े होंगे और आप बच्चों की परवाह करने के लिए आगे बढ़ेंगे। The Lord loves you. प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। We love you, Lord. हम आपसे प्रेम करते हैं प्रभु, In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन। Dear viewers, Jesus Calls website has been completely restructured to bring you countless blessings. If you go to the internet and log on to www.jesuscalls.org, you will find the Dinakrins presenting you with today's promise and today's prayer to bring God's blessing for the day. Also, you will find powerful prayers offered for every need of yours by Dr. Paul Dinakrin, which are packed with God's promises to bring them to pass in your life. Along with these, Dr. Paul Dinakrin has also compiled and presented promise verses from the Bible for specific needs which will ignite your faith to claim the blessings God has for you. You can also find all the songs sung by Dr. D.G.S. Dinakrin in the website. In addition, ways to join the different facets which have brought blessing to millions, such as the Family Blessing Plan, Young Partners Plan, Television Club Partners Plan, and Business Blessing Plan are made easily accessible in the website. Dear viewers, no matter where you are in the world, you can receive the blessings right where you are through the website www.jesuscalls.org.
Also, do share these privileges available in the Jesus Calls website with your dear family and friends and receive God's blessings.